Very good evening, everyone. Please stay in the meeting. Okay, the session will start by 3:30. तब तक आप प्लीज मीटिंग में ज्वाइन करे रहिए. फाइन. Everyone kindly remain muted so that there is no disturbance, and please remain seated in a proper and a formal manner, as the speaker is very senior chartered accountant and he will be guiding you about all the process. Vasudhi, I would request you to restrict the unmute Yes. option. Right, sir. Students, regarding the certificate that you are asking, we'll discuss this at the end of the session. By then, please stay in the meeting. Regarding any update or any issue or any doubt you have about the certificate and the sessions, we'll discuss it at the end of the session. Okay. So kindly wait till then, and then we'll be proceeding with your questions. Students, kindly do not use the annotations. Fine. This will create disturbance in the session. So kindly, we request you all to maintain the decorum and please do not use the annotations.
Good evening, students. Kindly wait for next 5 minutes. We are going to start the session by 3:25 or 3:30. So by the given time. So by then, please stay in the meeting. वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। एंड ये सेशन अभी स्टार्ट होगा। आवर स्पीकर वुड ज्वाइन एट 3:30 एंड बाय दैट टाइम if any student any kind of doubt or anything, they can note it down and they can put it in the chat box. We shall be taking all the questions the speaker related to the topic will be taking, and we from the administration side, whatever challenges are there, whatever doubts are there to the students regarding talk of industry experts, some student are having doubt regarding agri-industry internship program, some student having doubt regarding certificate of talk of industry expert. So all such things will be answered. तो किसी भी प्रकार का किसी का डाउट है दैट विल बी आंसर्ड, तो उसके लिए आप चिंता ना करें एंड डू नॉट वरी अबाउट इट. सो वी शैल बी स्टार्टिंग इन मीन टाइम. And I would also urge the student, I'm just sharing one message in the chat box. I would request you to copy it and share it in your class WhatsApp group so that more students who may be interested would join this session and that would be beneficial for them. Okay, so just a request, please share this.
To participants, I have shared the message in the group. I would request कि इसे कॉपी करके एक बार अपने क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, so that that would be beneficial. जैसे कि आज का टॉपिक है एग्री स्टार्टअप डिकोडिंग रेजिंग फाइनेंस, सो वी हैव इनवाइटेड honorable Manit sir, and he is fellow chartered accountant. He is a very senior, and he is ex-head finance, who was also being given the responsibility as chief financial officer of JK Technosoft at the time. And right now he'll be joining and he'll be answering all your queries. And this is a very good session for the students who are keen to learn that how things can be done, and having just an urge to do that. I want to do a startup, and how various steps are being taken. कैसे आप एक के बाद एक स्टेप्स लेते हो, राइट डायरेक्शन में मूव करते हो, सो दैट मिनिमम रिसोर्सेज में आप अच्छे से अच्छा आउटकम ला पाओ, जल्दी से जल्दी अपना सक्सेस अचीव कर पाओ थ्रू द स्टार्टअप. सो राइट नाउ स्टार्टअप इज अ बज throughout the India and the world, and this is a high time that you should also be learning about it. So with that, we shall be starting. I think Baswati, you can play that video by the time sir is joining, and then Right, we'll sir. start. Yeah, thank you. Welcome to Acharyapuram Education Foundation, where vision meets innovation and passion drives excellence. Founded by Dr. Rahul Dev Pandey, an esteemed alumnus of GBPUANT Pantnagar and IIFT New Delhi, Acharyapuram is not just an educational initiative, it's a movement. With over 22 years of global experience spanning 55 plus countries, Dr. Pandey has worked with renowned organizations like Bayer, Syngenta, Tata Chemicals, Mexico, and Mahindra Agri Solutions. His expertise in R&D, production, strategy, and product development has shaped him into a person with knowledge across different domains in agri-business sector. At the heart of Acharyapuram are two transformative initiatives: Acharyapuram Agri-Business Management School, ABMS, Greater Noida. ABMS offers cutting-edge programs like the MBA in Agri-Business Management, recognized by AICTE and AKTU Uttar Pradesh through Pathfinder, along with PGAI OCP by Acharyapuram Industry-Driven Certificate Program, designed by experts to ensure students are fully prepared for the corporate world. These programs seamlessly combine theoretical knowledge with practical training, ensuring students are job-ready from day one. With a 100% placement guarantee, international exposure, and academic scholarships, ABMS is a hub of opportunity and innovation. Corporate Setu, bridging the academia-industry gap. Corporate Setu is one-of-a-kind initiative addressing the unique skill demands of the agri-business sector, from research and product development to marketing and business strategy. We deliver customized training for frontline agri-business teams in departments like R&D, sales, and product development. Together, these initiatives ensure Acharyapuram isn't just shaping careers, it's transforming the future of agri-business education and practice. At Acharyapuram, we are guided by visionary leaders committed to driving change. Shri Ram Iqbal Singh, founder chairman of NACOF and ex-chairman of NCCF India Limited, a pioneer in national level agri-business empowerment. Mr. Ashok Sharma, ex-president of Mahindra and Mahindra Agri Solutions, whose extensive expertise drives innovation and growth. Mr. Birendra Kumar, director of industrial training at Acharyapuram, is the founder of Avyayaya Agri Solutions Private Limited and has worked with agricultural giants like BASF, Mahindra, and Parijat. Mr. Harish Sharma, Director, Human Resource with over 30 years of HR experience. Having worked with global giants like Bayer, UPL, Crystal, Tata,
and ADAMA, we have also launched AAAI, the Acharyapuram Association of Academia and Industry, a collaborative platform inviting experts from academia and the corporate world to shape the future of agri-business education. Acharyapuram Education Foundation, shaping the future of agri-business education. Together, we are building tomorrow's leaders, innovators, and change makers. Yeah, Bhaswati, just sir is joining. I'm coordinating with sir. So just give a minute. Students, I would request you to please make sure the decorum, and I would urge students, those who can turn on camera, those who are not traveling, and could be possible for them, better turn on camera because that will increase the interaction and it would be beneficial. Okay, with us, Manit sir is here. Bhaswati. Yes, sir. So good evening to all. First of all, thank you everyone for joining with us today. I welcome you all to the fourth session of Talk of Industry Expert series. Dear students, we have with us Mr. Manit Kunal sir. Sir is a fellow chartered accountant, ex-head finance at JK Technosoft, a BCom honors degree holder with ACS and LLB. So today's session is regarding agri startup decoding, raising and managing finance for agri startups. So, sir will be taking the session and will be explaining and giving us insights. How can we raise finance in the agri startups? How to build a new agri startup business in today's time? So, I would request sir to please take forward the session from here. Yeah, thanks, Masud. Hi, everybody. Good afternoon. So, yes, we'll start the session. I'm just presenting. Just a minute. Is the right stage available? Very warm welcome, sir. Is this visible? Yes, Sir. sir. My screens are visible. Hi, good afternoon, everybody. As shared by the Vaspati, my name is Manit Kunal. I'm a practicing chartered accountant, currently into consultancy. Before that, I started my career with the Buildersoft, and there I spent near about 5.5 years in the finance. Then I moved to JK Technosoft. There I was a finance head. Then I started my own consultancy, and since 2019, I have been into the consultancy field. So let's start. I'll just brief you about what all we would be covering. Just a minute. Sir, I would request you to have the conversation in mixed Hindi-English because we have the crowd from all over India, and Okay. some of the students sometimes struggle in the part of English, and some Okay, that's fine. That's fine. understand Hindi as well. Yeah. So that's why some mix would be better. Yeah, perfectly fine. Yes, so हम पहले just we will discuss the coverage. क्या क्या हम cover करने वाले हैं in between. Just a minute. Yes, so the coverage would be first हम different forms of business का discussion करेंगे. अगर हमें business करना है, so what all forms which are available for us, उसके क्या advantages हैं, क्या legalities है, कौन सा best form रहेगा हमारे लिए. Second would be startups का funding requirements क्या है, क्यों स्टार्टअप को फंड चाहिए, किस हेड्स में चाहिए. Third would be what are the different types of fund which startup can raise. Fourth would be stages of startup funding and sources. कौन से different stages हैं जब हम startups में funding ले सकते हैं और किस पर्पस के लिए ले सकते हैं, और उस फंड उस स्टेज के लिए कौन से सोर्सेज हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे. Then we will discuss the how to what are the steps, different steps which are required for raising startup fund. फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से उनको क्या स्टार्टअप्स में चाहिए, सो दैट कि जब आप स्टार्टअप्स करें तो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट एंगल आल्सो कि हमें तो फंड चाहिए बट इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए हमसे, इन्वेस्टर्स क्या देखेंगे तब वो फंडिंग करेंगे. देन विल डिस्कस द स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, जिसमें जब हम रजिस्टर्ड होते हैं तो गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स हैं और जो स्कीम्स हैं वो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट वेरियस
fund supports which are available from the government once we get ourselves registered with the Startup India. और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमने कोई स्टार्टअप किया है तो व्हाट ऑल थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर। अगर हम इंटरप्रेन्योर्स हैं तो हमें क्या क्या फाइनेंस एंगल से हमें केयर करना चाहिए, सो दैट कि हम ऐसा कुछ हमसे गलती ना हो जिससे स्टार्टअप्स का रिस्क आ जाए, स्टार्टअप पे रिस्क आ जाए। सो विल स्टार्ट विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। सो अगर आपको कोई स्टार्टअप्स करना है, अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज है, आप चाहते हैं उसका बिजनेस करें, तो वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस विच आर अवेलेबल जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। सो विल डिस्कस ईच एस्पेक्ट, बट बिफोर दैट हमें ये भी सोचना है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें कौन सा फॉर्म हमें सूट करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ पॉइंटर्स पहले हम आइडेंटिफाई करें कि उस पॉइंटर्स पे हमारा हमारा एंगल क्या है, व्हाट वी थिंक ऑफ इट एंड हाउ डू यू वांट कि हमें इसको कैसे लेके जाना है। ऐसा ना हो कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो हमारे हमारे जो बिजनेस एंटिटी होने वाला है उससे सूट करना चाहिए, उससे मिसमैच नहीं होना चाहिए। सो सो देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। वो क्राइटेरियाज आपको पहले डिसाइड करना है कि उस क्राइटेरिया पे आपका व्यूज़ क्या है, और तभी हम उस एंटिटी को, उस लीगल फॉर्म को डिसाइड कर पाएंगे कि जो लीगल फॉर्म हमें सूट करता है। दीज आर द क्राइटेरियाज विच यू नीड टू डिसाइड फर्स्ट कि हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सूट करता है, किस टाइप का लीगल सेटअप सूट करता है। तो फर्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। अभी जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो भी चाहते हैं कि एग्री स्टार्टअप्स वो स्टार्ट करें, तो उनको पहले ये देखना है कि हमारे लिए फॉर्मेशन जो है कितना ईज हो, कितना जरूरी है मुझे कि बहुत सिंपल सा फॉर्म रहे, मुझे ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना, मेरा मॉडल छोटा है अभी, मुझे ज़्यादा लोगों से अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल एक बिजनेस प्रोटोटाइप तैयार करना है। सेकंड आता है एडुकेसी ऑफ कैपिटल, कितना हमारे पास कैपिटल है जिस कैपिटल को हमें यूज करना है। थर्ड वन वुड बी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर, कंट्रोलर, मैनेजमेंट। जब हम डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं तो ये चीज़ें चेंज होती हैं कि ओनर्स की कैपेसिटी चेंज होती है, मैनेजमेंट अलग होता है, कंट्रोल किसी और के पास होता है। तो हमें किस टाइप का सेटअप चाहिए, हम खुद चाहते हैं कि बिजनेस करें या हम किसी और के थ्रू करना चाहते हैं या किसी एक्सपर्ट्स को हम अपने बोर्ड पे लेना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है और आपका बिजनेस मॉडल कैसा है। एंड देन कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, जहाँ पर हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा ये मॉडल है या जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो कितने लंबा टाइम मतलब हमें करना है, या फिर हम ऐसा छोटा सा भी कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर देख रहे हैं और वो चल गया तो ठीक है, अदरवाइज वी विल शट इट डाउन। तो ये एंगल हमें डिसाइड करना पहले ही पड़ेगा कि हमारे पास कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी का क्या प्रोस्पेक्ट है उसमें। ऑपरेशंस फ्लेक्सिबिलिटी कितनी चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ कि कुछ भी डिसीजंस लेना हो तो मैं खुद लूंगा या किसी और के थ्रू लूंगा, मुझे उसमें कितना कॉम्प्लेक्स बनाना है ये मैटर करता है। बिकॉज आगे कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें आप सारे डिसीजंस नहीं ले पाओगे, उसके एक तरीके होंगे। कुछ ऐसा है जिसमें आप खुद ही लोगे। तो इट डिपेंड्स कि आपका अपना आउटलुक क्या है। अगर आपको खुद ही सारे डिसीजंस लेने हैं तो सर्टेन फॉर्म्स आर बेनिफिशियल, अगर आप किसी और के थ्रू लेना है, किसी एक्सपर्ट को ऑन बोर्ड करना है, तो फिर डिफरेंट फॉर्म चलेगा। तो यहाँ पर अभी हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसी भी स्टार्टअप में अगर आपका थॉट प्रोसेस है कि मुझे स्टार्टअप खोलना है, तो उसके पहले ये डिसाइड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्ट्रक्चर से करना है। आपको कंपनी बनानी है, आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, आपको एलएलपी करना है, आपको पार्टनरशिप करना है। सो दीज फैक्टर्स, ऑन दीज पॉइंट्स आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज विल डिस्कस हाउ दीज फैक्टर्स विल इम्पैक्ट ऑन डिसाइडिंग कि कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए सुटेबल है। डिस्टिंक्ट ओनरशिप, ओनरशिप किसका होना चाहिए, कंप्लीटली आपका होना चाहिए इफ यू आर और यू आर रेडी टू शेयर विद द अदर पर्सन, जहां पर आप दूसरे के एक्सपर्टीज को भी यूज करोगे, या फिर आपको लगता है कि आपके बिजनेस के अंदर आपके पास सफिशिएंट ओनर नॉलेज है और आपको किसी की जरूरत नहीं है। सेपरेट स्टेटस एंड मैनेजमेंट, कंपनी के लिए अलग स्ट्रक्चर चाहिए, अलग स्टेटस चाहिए, या फिर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ही कंपनी हो और आप ही अपने नाम से मैनेज करना चाहते हो। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज में आपको डील करना है, क्या आप उसमें करना चाहते हो, वो भी मैटर करेगा कि कौन सा आपके लिए स्ट्रक्चर सूट करता है। कॉन्टिन्यूटी विद द बिजनेस ऑपरेशंस एंड रिस्क इन्वॉल्वमेंट, कितना रिस्क इन्वॉल्व है इस बिजनेस में, वो भी डिसाइड करेगा कि आपके पास आगे स्ट्रक्चर कौन सा रहना चाहिए। सो जब भी आप स्टार्टअप का डिसाइड करें तो ये एंगल आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। आप उसमें बैठकर अपना थॉट प्रोसेस दो कि क्या मुझे करना है, कैसे करना है,
सो दैट कि जब हम डिसाइड करें कि कौन सा स्ट्रक्चर बेनिफिशियल है तो ये हमारे पास क्लैरिटी रहे इस चीज़ों का. So we'll move then to what are the different forms which are available to us in Indian setup. So these are the important these are the important forms of business organizations which are अवेलेबल टू अस. इसके थ्रू हम बिजनेस कर सकते हैं. बट अगर हम कॉमर्शियली बात करें तो इसमें से कुछ को हमें छोड़ना पड़ेगा. हम जो इम्पोर्टेंट वन है उसको हम टेकअप करेंगे. जैसे फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटरशिप, अगेन अनदर वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, one person company and LLP. These are the very commonly used business forms जहाँ पर हम कुछ ना कुछ एंटिटी के फॉर्म में बनाते हैं. अब हम एक एक पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे कि कौन सा क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो कि इनके साथ एसोसिएटेड है. बिकॉज एवरी टाइप्स ऑफ एंटिटी कम्स विद द ओन एडवांटेज और डिसएडवांटेज. तो हम फर्स्ट पहले सोल प्रोप्राइटरशिप पे स्टार्ट करते हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब हो गया कि आप अपना बिजनेस खुद ही अपने नाम से करो. सो इन दैट केस इट्स वेरी सिंपल टू ओपन, बिकॉज इसमें आपको कोई अलग से पैन कार्ड नहीं लेना होता है. आपको डिसाइड करना है कि ठीक है मुझे बिजनेस करना है. सो यू नीड टू हैव योर ओन पैन अकाउंट, पैन नंबर. सेकेंड वन, यू नीड टू ओपन द बैंक अकाउंट विद द नेम ऑफ द बिजनेस एंटिटी. वहाँ पर आपको नेम डिसाइड करना है और एक दो जगह पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है. देन ओनली यू कैन ओपन योर करेंट अकाउंट. बिकॉज करेंट अकाउंट होगा और वो आपकी एंटिटी के नाम से होगा, तभी उसकी आइडेंटिटी आप दिखा पाओगे कहीं भी कि ये मेरा बिजनेस सेटअप है और इसका नाम ये है और इसको मैं इस करेंट अकाउंट के थ्रू रन करता हूँ. बट ये जितना खोलने में आसान है, इट कम्स विद द फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं कि क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्यों ये बड़ा टिपिकल डिफरेंस है. बिकॉज ये बड़ा कॉमनली फाउंड है इंडिया में. लोग स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो बहुत सारे लोग पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करते हैं, जिसमें उनका कोई कंप्लायंस का कॉस्ट एज सच नहीं होता इनिशियली. केवल एक बैंक अकाउंट खोलना होता है और एक दो रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं. दिस रजिस्ट्रेशन कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी MSME, इट कैन बी startup, not startup India is not eligible. It can be शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, इट कैन बी GST. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इसमें सिंगल ओनरशिप होता है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी से नहीं करते, बिकॉज हमने अपना खुद ही स्टार्ट किया है एंटिटी. सो देयर विल बी नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें आपका खुद का कैपिटल होता है, बिकॉज आप खुद ही रन कर रहे हो और यू आर इंटाइटल्ड फॉर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. तो आपका कैपिटल ही लगेगा और आपका कंट्रोल ही रहेगा. लायबिलिटी साइड में इसमें डिसएडवांटेज है क्योंकि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है. यहाँ पर अगर आपके बिजनेस में कोई केस कर देता है या अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हो जाते हैं तो देन यू आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल और आप और आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है. सो ये एक क्रिटिकल फैक्टर है जो लोगों को सोल प्रोप्राइटरशिप करने से रेस्ट्रिक्ट करता है और फिर लोग एक कोई लीगल फॉर्म में जाते हैं जहाँ पर कोई एंटिटी है जो कि ऑपरेट करता है आपके बिहाफ में. यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत लेस है, ज़्यादा कुछ लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने कोई एंटिटी नहीं बनाई, आप अपने नाम से ही बिजनेस कर रहे हो. और इसके अंदर लिमिटेशंस क्या होते हैं? लिमिटेड कैपिटल है, बिकॉज आप जितना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वही कैपिटल होगा. इसके अंदर कोई और कैपिटल कोई लगाता नहीं है, बिकॉज आपने सोल प्रोप्राइटरशिप स्ट्रक्चर चूज किया है. अनलिमिटेड लायबिलिटी है आपकी. अगर कोई ऑपरेशंस में करते समय अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, किसी ने कोई केस फाइल कर दिया, then the person who is running this sole proprietors would personally be liable for all those risks. So risk mitigation यहाँ पे नहीं है. Continuity का लिमिटेशन है, बिकॉज ये सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू ही चल रहा है. अगर बाय द वे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स किसी के साथ हो गए तो प्रोप्राइटरशिप ही बंद हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नोबडी हु कैन कैरी ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट. लिमिटेड साइज ही हो सकता है, बिकॉज आप अपने आप ही कर रहे हो, देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल टीम इन्वॉल्व. तो यहाँ पर साइज आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते, उसमें एक लिमिटेशन कहीं ना कहीं आ जाती है. लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज, बिकॉज आपके बोर्ड में कोई नहीं है, आपका स्ट्रक्चर सेल्फ ड्रिवन है, बोर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की कोई एक्सपर्टीज नहीं आती. तो ये एक सोल प्रोप्राइटरशिप के प्रोस एंड कॉन्स हैं. जब भी आप डिसाइड करो तो ये एक बड़ा इजी सा एक स्ट्रक्चर होता है जो लोग ऑप्ट करते हैं, बट दिस इज नॉट ऑलवेज करेक्ट.
आपको माइन्यूटली स्टडी करना है कि आपके स्ट्रक्चर के लिए कौन सा बेटर है, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ एक इनहेरेंट लिमिटेशन ये होती है कि ये स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। सो आप स्टार्टअप्स वाले बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर रही है वो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हो। एट द सेम टाइम ये खोलना आसान है, मैनेज करना आसान है, और आप जब चाहो तो बंद कर सकते हो। सो दैट इज द प्लस पॉइंट विद दिस स्ट्रक्चर। हम अगेन आते हैं दूसरे वाले में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये भी एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि लोग बिजनेस करते हैं, बट ये प्राइमरली बिजनेस में जो जिनके जिनके फैमिली में जो बिजनेस है और उसको कैरी ऑन करने के लिए करते हैं। कोई थर्ड इंडिपेंडेंट सा कोई बिजनेस नॉर्मली इसमें नहीं होता, बिकॉज ये थोड़ा सा टिपिकल सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि 3 जनरेशंस एट मैक्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। जो सीनियर मोस्ट होता है वो करता होता है, वही डिसाइड करता है उसको कैसे चलाना है, बट उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और बाकियों की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बाकी को पार्टनर्स बोलते हैं। तो ये हिंदू फैमिली के साथ ही ये हो सकता है। और अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाते हो तो इसके अंदर एक सेपरेट पैन होता है। कई बार लोग टैक्स मैनेजमेंट के लिए भी इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, बट स्टार्टअप के लिए एज सच ये लीस्ट प्रेफरेबल है, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इसको इनकरेज नहीं करते हैं इस एंटिटी के साथ डील करने में, बिकॉज ये फैमिली के रिलेशंस जो है इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो थोड़ा सा एक प्रोफेशनल एंगल कम होता है इसमें। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देख लेते हैं। लीगल स्टेटस है, इसको लीगल स्टेटस मिला हुआ, मेंबरशिप इसकी हिंदू फैमिली के अंदर ही होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग होता है विद इन को पार्टनर्स, मैनेजमेंट इसका करता ही करता है, लाइबिलिटी करता कि अनलिमिटेड हो जाती है, और फ्लक्चुएटिंग शेयर्स है, बिकॉज जैसे ये कोई नया मेंबर बॉर्न होता है फैमिली में वो भी शेयर होल्डर बन जाता है, और कोई बाय द वे कोई पास होता है, किसी का डेथ होता है तो वो फिर रिड्यूस हो आता है करस्पॉन्डिंगली। कॉन्टिन्यूटी इसकी चलती रहती है। इसके लिमिटेशन है कि इसके पास लिमिटेड जो HUF के पास जो प्रॉपर्टी है वही इसमें यूज कर सकते हैं। मोटिवेशन नहीं होता, बिकॉज जो करता है वो करता है काम, लेकिन बेनिफिट सारे को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो एक एंगल आता है जिसमें वो हाईली मोटिवेटेड नहीं फील करते। और मोर इम्पोर्टेंटली ये बहुत प्रोफेशनल स्ट्रक्चर नहीं है बिजनेस को करने के लिए। ये फैमिली बिजनेस को मैनेज करने के लिए इज फाइन। फैमिली की प्रॉपर्टी है, फैमिली के नाम पे कोई ऐसा बिजनेस चल रहा है तो वो ठीक है, बट न्यू बिजनेस, न्यू सेटअप वेयर यू वांट समबडी एल्स टू बी इंक्लूडेड, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर डिजायरेबल नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ही लिमिटेड एरियाज के लिए कवर होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आप जब 2 लोगों या उसके ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि 2 लोग मिलकर या 3 लोग मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाए तो फिर पार्टनरशिप आता है। बट पार्टनरशिप के अंदर कोई इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर लीगल एंटिटी नहीं होती है। आप जो कर रहे हो तो आप और आपके पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे रिस्क के लिए, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आप और आपके पार्टनर के बीच में शेयर्ड होता है। तो पार्टनरशिप को बनाने के लिए आपको एक दोनों में एग्रीमेंट करना होता है। एग्रीमेंट करने के बाद उस एग्रीमेंट के थ्रू आपको पैन कार्ड मिल जाता है और उसके बेस पे आप एक अलग पार्टनरशिप एंटिटी बन जाती है, जो कि ऐसे तो लीगल होती है, बट जो इसकी रिस्क है वो इंडिविजुअल पार्टनर्स के होते हैं, ना कि एंटिटी की। तो एंटिटी का केवल रोल केवल एक सेपरेट एंटिटी क्रिएट करना है, बट व्हेन इट कम्स टू रिस्क, द रिस्क इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे आर शेयरिंग अमंग देम। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं जिनके बीच एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स होता है। कॉम्पिटेंस, अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड है जिनके साथ आपको बिजनेस करना है, दिस कैन बी वन ऑफ द फॉर्म जहां पर आप पार्टनर्स का कॉम्पिटेंस मैटर करता है कि पार्टनर्स किस पार्टनर के साथ आप आगे जाना चाहते हो। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिपेंड करता है आप और आपके जो पार्टनर है उसमें कितना रखना है और कितना आपको कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है। बट व्हेन इट कम टू लायबिलिटी, लायबिलिटी पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है, जिसमें वो अगर किसी ने जैसे कंपनी फॉर्म में लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। तो पार्टनरशिप एंटिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस में कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होते हैं तो इंडिविजुअल पार्टनर्स और उनकी प्रॉपर्टी दोनों रिस्पॉन्सिबल होती है। जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन होता है प्रिंसिपल एजेंट का होता है, बिकॉज पार्टनरशिप एंटिटी के बाकी जो पार्टनर्स है वो एजेंट होते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं वो एज एन एजेंट करते हैं। लीगल स्टेटस इसका एक डिफरेंट स्टेटस है, बट
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की कोई लीगल आइडेंटिटी है तो लीगल आइडेंटिटी इसके अलग से नहीं बनती, सेपरेट नहीं होती पार्टनर से, वो पार्टनर ही होते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो एक सिंपल से एग्रीमेंट बनाकर आप लोग कोई भी चाहे तो पार्टनरशिप रजिस्टर कर बिजनेस कर सकता है। आपको सेपरेट पैन के लिए अप्लाई करना होगा और उस पैन को यूज कर आप करेंट अकाउंट खोल सकते हैं अपना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इजी होता है, अगर आपको कभी लगता है कि बंद करना है तो रिलेटिवली ईजियर है। पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग होती है, जो भी उनके पास शेयर जिस रेशियो में उन्होंने पार्टनरशिप की है उसी रेशियो में उनकी प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप फर्म की है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशंस व्हिच दिस स्ट्रक्चर कैरीज, बट मोर इम्पोर्टेंटली द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लिमिटेशन होती है वो होती है कि इसका कोई लीगल सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होता पार्टनर्स के अलावा। तो अगर कोई इंसिडेंट है, अगर कुछ हुआ है तो पार्टनर्स आर solely responsible for that. Limited life disputes among the partners हो सकते हैं, थर्ड पर्सन को लाना a bit of complex process, कंपनी वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, बट इसमें ऑपरेशंस को रन करना रिलेटिवली इजी होता है बिकॉज दो पार्टनर होते हैं, वो जैसा डिसाइड करते हैं वैसे रन होता है। सो आई होप दिस इज सो फार दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लास्ट में हम क्वेश्चंस टेकअप कर लेंगे, अगर किन्हीं का कोई क्वेरी रहा तो विल डिस्कस ऑन दैट। Yes, sir. Sir, in between as well, if you see so, because if हाँ. the PPT is too long, because it will be, may take a lot of time, so we can skip, like run through that part. So, Okay. Should I go ahead then? no, sir, you can continue. Like, if student have any doubt, they will write in the chat box. That can be taken on later. Okay, fine. ठीक है. So another form is private company structure, जिसमें two types of company mainly होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। तो बीइंग स्टार्टअप आप प्राइवेट कंपनी ही स्टार्ट करोगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, वो होता है प्राइवेट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोवाइड करती है आपको, बट फॉर्मेशन जो इसका है वो एक 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 कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट इंटिटी क्रिएट होती है और इंटिटी की क्रिएशन पे आप उसको यूज कर अपना बिजनेस करते हो। तो बॉटम लाइन में कहे तो एक सेपरेट इंटिटी है जो बिजनेस कर रही है और यू आर एसोसिएटेड देयर एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर और बोथ, बट उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाती है। सो प्राइवेट कंपनी मोस्टली दो लोगों से स्टार्ट हो सकता है, और अगर प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं तो 200 से ज़्यादा हो नहीं सकते एम्प्लॉयज़ शेयर होल्डर। और इनका जो राइट्स होता है ट्रांसफर का वो रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होता है, आप फ्रीली नहीं कर सकते, जैसे पब्लिक कंपनी का शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफर करते हैं। प्राइवेट एंटिटी में ऐसा नहीं होता, एक फ्यू सिलेक्टेड प्राइवेट इंडिविजुअल्स बनाते हैं कंपनी को, और आप पब्लिक से प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले सकती हैं। आप सिलेक्टेड लोगों से ले सकते हैं, अपने शेयर होल्डर से ले सकते हैं, और फिर थर्ड पार्टी से ले सकते हैं। बट पब्लिक से, जैसे हम पब्लिक कंपनी के इसमें हम पब्लिक में आईपीओ लाते हैं, वो प्राइवेट कंपनी के साथ नहीं होता। ये ओन प्राइवेटली फंडेड होता है ये कंपनी, जो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करती है। बट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और पार्टनरशिप, दे और आर एलिजिबल फॉर द स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन। तो ये एक बेनिफिट होता है कि अगर आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर उसके बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको फिर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी तो बनाएंगे, प्राइवेट कंपनी या फिर एलएलपी, और या तो आपको पार्टनरशिप एंटिटी बनानी है। सो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में जो स्टार्टअप रेस्पेक्ट से है तो आप प्राइवेटली ही जाओगे। प्राइवेट कंपनी, अगर हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मेनली डिफरेंस होता है, जब आप पब्लिक एट लार्ज जाकर पैसे लेते हो आईपीओस के थ्रू तो वो पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर प्राइवेटली प्लेस्ड फंड है तो ये प्राइवेट लिमिटेड में आएगा। अनदर फॉर्म जो स्ट्रक्चर है वो है एलएलपी का। एलएलपी इज मिक्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड पब्लिक एंड कंपनी स्ट्रक्चर। तो एलएलपी के अंदर एक सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो एक सेपरेट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो कि आपको लीगली आपको प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज एलएलपी हैज इट्स ओन लीगल स्टेटस। तो लीगली आपके पास एक एंटिटी है, प्लस पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी है, बिकॉज इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग बना मिल करके एलएलपी क्रिएट कर सकते हैं। बट इसका कॉम्प्लेक्स, इसका फॉर्मेशन वो सोल प्रोप्राइटरशिप वाला नहीं होता है। इसमें लीगली आपको जाकर एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद
ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट होती है। तो अगर इसकी मेन स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें तो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मींस लायबिलिटी एलएलपी की एलएलपी एग्जिस्टेंस में रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट है बिकॉज जो पार्टनर्स हैं वही डिसाइड करते हैं कि डिसीजंस लेते हैं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट कोई एज सच नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स है क्योंकि ये लीगल एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, तो कुछ टैक्स बेनिफिट्स हैं जो इसको मिलता है। इजी ट्रांसफर है ओनरशिप का, आप इंडिविजुअल पार्टनरशिप जैसे ट्रांसफर होते हैं शेयर्स के, वैसे ही आप सेपरेट एग्रीमेंट कर कर ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर लेस इन कंपैरिजन टू द कंपनी। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पास एक एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि ये आपको लीगल स्टेटस देता है, बट एट द सेम टाइम जो कंपनी के अंदर जो फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स का जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो इसमें नहीं होता है। सो ये एक जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमने स्ट्रक्चर जो डिस्कस किया, ये डिफरेंट फॉर्म्स है विच यू कैन यूज इट इन ऑर्डर टू ओपन अ स्टार्टअप। तो जब आप स्टार्टअप के लिए सोचते हो तो पहले सबसे पहले जो आपका डिसीजंस होगा वो इन्हीं पॉइंट्स पे होगा कि मुझे करना कैसे है। किसी को मुझे लाना है आगे, किसी को बढ़ाना है, तो किसी को शेयर्स में देना है, या फिर मुझे खुद ही करना है, तो डिपेंड्स कि कौन सा स्ट्रक्चर आपको सूट करेगा। सो अब हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं जहां हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टार्टअप्स को बेसिकली जरूरत फंड्स की क्यों होती है। these are the these are the few important areas where startup needs funding. Just a minute. यस। सो कई बार ये होता है कि हमारे पास आइडियाज तो हैं बट प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें फंड चाहिए। तो प्रोटोटाइप क्रिएशन हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, टीम हायरिंग करनी है हमारे पास, मुझे काम करवाना है बट फंड नहीं है तो फंड चाहिए, उसको टीम हायरिंग के लिए फंड चाहिए। वर्किंग कैपिटल वुड मीन कि जहाँ पर हमें ऑपरेशंस को रन करना है और उसके लिए मुझे फंड चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल के लिए फंड हो गया। लीगल एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, लाइसेंसेज एंड सर्टिफिकेशंस, marketing and sales, and office space and admin space. So these are the common type fund heads where the funding is normally funding is required. तो आपको इसमें डिसाइड करना है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं इसमें से सारे पॉइंट्स को आप कैसे हैंडल करोगे। अगर अगर ओन फंड से होता है दैट इज फाइन, जरूरत नहीं है अगर कुछ हेड्स की तो वो भी फाइन है। बट अगर आपको किसी पॉइंट्स पे लगता है कि आपको फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो फिर आगे आपको जो उसकी प्लानिंग करनी है वो अकॉर्डिंगली उसी लेवल पे करनी होगी। सो जब हम स्टार्टअप फंडिंग की बात करते हैं तो देयर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, थ्री थिंग्स इन फैक्ट। फर्स्ट इज द इक्विटी फाइनेंसिंग, जहां पर आप अपने इक्विटी का डाइल्यूशन करते हैं, मतलब आप अपने ओनरशिप को देते हैं और सामने वाला ओनरशिप आपकी कंपनी में लेता है और उसमें फाइनेंस करता है। एक होती है डेप्ट फाइनेंसिंग जिसमें आपका ओनरशिप शेयर नहीं होता। डेप्ट की क्या होती है, मतलब आपको वो लोन देते हैं और उसके अगेंस्ट में आप उनको इंटरेस्ट देते हो। तो इस केस में आपकी होल्डिंग डाइल्यूट नहीं होती, होल्डिंग इंटैक्ट रहती है। और एक होता है ग्रांट्स, जिसमें गवर्नमेंट के कुछ ग्रांट्स मिलते हैं जो कि ना जिसमें आपको ओनरशिप डाइल्यूट करना होता है ना जिसमें इंटरेस्ट पे करना होता है, बट यू नीड टू फुलफिल सर्टेन क्राइटेरियाज ऑफ द गवर्नमेंट। और उसके अंदर जब गवर्नमेंट अप्रूव करती है तो आपको ग्रांट मिलता है, जो कि इस बात पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की जो क्राइटेरिया है ग्रांट देने के वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो विल स्टार्ट विद इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग इज बेसिकली जहां पर आप ओनरशिप को डाइल्यूट करते हो। तो जब आप ओनरशिप को डाइल्यूट करते हो तो इस जब ये फंड आती है तो इसका कॉस्ट ऑफ फंड नील होता है, बिकॉज वो आपका आपकी एंटिटी में ओनर बन जाता है। देन यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एज एन इंटरेस्ट, बट यस जब आपकी प्रॉफिट होती है तो आपको उसी परसेंटेज में प्रॉफिट को शेयर करना होता है। तो वो जैसे आप ज्यादा परसेंटेज के होल्डर हो गए, वो भी सर्टेन परसेंटेज का होल्डर बन जाता है। तो अगर मोस्टली हम बात करें तो इक्विटी फाइनेंसिंग में कॉस्ट ऑफ फंड तो कम होता है, बट एट द सेम टाइम आपको इक्विटी से अपनी इक्विटी का शेयरिंग करना होता है। तो ब्रीफ में देखिए, इक्विटी इन्वॉल्व सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ए कंपनीज इक्विटी इन रिटर्न ऑफ कैपिटल। आप किसी से कैपिटल के अगेंस्ट में अपने अपने ओनर्स कंपनी की इक्विटी को शेयर करते हो। इसमें रिस्क क्या है कि रिस्क ये है कि थर्ड पार्टी आपकी कंपनी में इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे ही थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है उसकी राइट्स बनते हैं आपके बिजनेस अफेयर्स में हाँ ना करने की, आपको डिसीजन उससे पूछ के भी लेने पड़ सकते हैं, डिपेंड्स कि आप किस कंडीशन पे आया है। बट एज
एज द इन्वेस्टर बिकम्स अ पार्टी टू द कंपनी, तो उसके बाद सारे राइट्स जो आपके हैं वो उसके भी बन जाते हैं। आपको कई बार कमिटमेंट भी करना होता है कि विद इन दैट पीरियड आप कितना आप कर पाओगे, बट इस केस में चूंकि इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व है तो आपके पास कॉस्ट ऑफ फंड कम होता है। आपको इंटरेस्ट नहीं देना, आप पे कोई बर्डन नहीं है जहां पर आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करना है और पैसे लौटाने हैं। यहाँ पे पैसे नहीं लौटाने, दैट पर्सन हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द ओनर। तो ये वाला पोर्शन जो है जहां पर आप इक्विटी शेयर कर कर फंड लाते हो, दैट बिकम्स इक्विटी फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग में इट इट इज कॉल्ड एज अ लोन। जस्ट आप किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया विद सर्टेन कंडीशंस कि जहां पर आप उनको कहते हो कि आफ्टर सम टाइम आई विल स्टार्ट पेइंग यू बैक विद द इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल बर्डन तो होता है इंटरेस्ट पे करने का, जो आपको प्रॉफिट से या फिर ओन फंड कंपनी से आपको पे करना होता है पीरियोडिकली, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आप अपने ओनरशिप से शेयर नहीं करते हो, तो आपकी कंट्रोल कंपनी की आपके हाथ में होती है और थर्ड पार्टी कोई उस चीज को मैनेज नहीं करता। नॉर्मली इक्विटी फंड में जो इन्वेस्टर होता है वो अपने डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट कर देता है, सो दैट कि जो नॉर्मल डे टू डे अफेयर्स है कंपनी को उसको भी कंट्रोल कर सके। तो ये डेब्ट फंड में नहीं होता। डेब्ट फंड में सिंपली वो डेब्ट देते हैं विथ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, और आप इंटरेस्ट के साथ वो उस लोन को रीपे बैक करते हो। और एक होता है गवर्नमेंट ग्रांट, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ग्रांट्स, जो ग्रांट्स होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट का डिफरेंट वेरियस स्कीम्स है जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए होते हैं, उसके इसमें ग्रांट्स गवर्नमेंट देती है। बट एट द सेम टाइम कुछ कंडीशंस होते हैं जो थोड़े स्ट्रिंजेंट कंडीशंस हैं कि आप में यूनिकनेस होना चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, और आप में कोई ऐसा यूनिक सा क्रिएशन होना चाहिए जो कि बहुत ऑब्वियस, बहुत कॉमन नहीं है। आपको कंडीशन सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है, विच इज नॉट नॉन रिटर्नेबल, एज वेल एज यू डोंट नीड टू शेयर एनी ओनरशिप विद ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर जो ग्रांट मिलता है वो आपको सिंपली एक इंकरेजमेंट होता है कि वो फंड आप यूज करो और उसको स्टार्टअप को और बड़ा करो। बट नॉर्मली ये ट्रेंचेज में होते हैं, मतलब एक बार में नहीं होता। आपको सर्टेन कंडीशंस को मीट करने के बाद एक पैसे मिलते हैं, फिर उसके बाद अगला कंडीशन मीट करोगे तो सेकंड ट्रेंचेज मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही ग्रांट मिलते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपका मॉडल क्या है, आपका वर्किंग कैसी है, और आपने कितना कुछ अचीव किया है ग्रांट्स लेने से पहले। तो वो कॉम्बिनेशन है जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट ने वेरियस रूट्स बनाए हैं जिसके थ्रू आपको ग्रांट्स मिलते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्टार्टअप फंड से ग्रांट्स कैसे मिलते हैं। बट मोस्टली ये 3 फॉर्म्स है जिसके अंदर आपको फाइनेंसिंग करने में आपको कोई ना कोई ऑप्ट करना पड़ता है। आप या तो अपने इक्विटी को डाइल्यूट करोगे, या तो आप डेट लोगे, तो आप इंटरेस्ट पे करोगे। तो नॉर्मली क्या होता है, आप अगर कंपनी इनिशियली प्रॉफिट अगर कम जनरेट कर रही है तो इंटरेस्ट पे करना बिकम अ बिट डिफिकल्ट, और अगर प्रिंसिपल्स को भी पे करना है तो कैश फ्लो पे थोड़ा प्रेशर होता है। बट इट डिपेंड्स कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या। अगर नेचर ऑफ बिजनेस इस चीज को सपोर्ट करता है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द डेट फाइनेंसिंग, बिकॉज इसमें आपको ओनरशिप डाइल्यूट नहीं हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं है, और आपके पास जब जैसे टर्म्स के अकॉर्डिंग आप पैसे रिटर्न कर दो और आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है। सो विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये डिफरेंट फॉर्म्स से डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें स्टार्टअप्स को फंड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फर्स्ट स्टेज है आइडिएशन, वैलिडेशन, सेकंड वैलिडेशन, अर्ली ट्रैक्शन, स्केलिंग एंड एग्जिट ऑप्शंस। तो ये स्टार्टअप का लाइफ साइकिल है जिसमें नॉर्मली इन्वेस्टर्स देखता है कि स्टार्टअप का फेज कौन सा है। वो अभी आइडिएशन में है, सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, फोर्थ में या फिफ्थ में, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टेजेस। वहाँ पर जब फंडिंग होती है उसकी उसका जो मॉडल होता है वो भी अलग हो जाता है। विल स्टार्ट विद द आइडिएशन। आइडिएशन में क्या होता है, इस स्टेज पे स्टार्टअप बेसिकली आइडिएशन आइडिया है उसके पास, उसको आगे को स्केल करना अभी नहीं है, अभी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, प्रोटोटाइप क्रिएट करना है। तो नॉर्मली इस स्टेज पे वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस फंडिंग के लिए आपके पास कॉमन कुछ फंडिंग ऑप्शंस होते हैं, जो एक बूटस्ट्रैपिंग होता है जिसमें आप अपने ही फंड को यूज करते हो, विच इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग। फ्रेंड्स एंड फैमिली अपने नियर एंड डियर से ले लिया, या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं कुछ जो कि आपके नोन में होते हैं, और वो एग्री करते हैं कि ठीक है हम इस स्टार्टअप को यहाँ पर मैं सपोर्ट करूंगा। स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलेरेटर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, जिसमें इनक्यूबेटर्स होते हैं गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो कि आपको इस स्टेज पे हेल्प करते हैं उस आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करने के लिए या स्केल करने के लिए। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम्स, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड स्कीम भी है जो स्टेज पे करती है। तो ये सबसे इनिशियल स्टेज होता है स्टार्टअप का, जिसमें स्टार्टअप अपने आइडिया लेकर आता है और उसको वो
प्रोटोटाइप में क्रिएट करना या इनिशियल एक फील्ड में उसको टेस्ट करना है, उस स्टेज पे होते हैं। इसके बाद वाली स्टेज होती है जो वैलिडेशन स्टेज होती है, जिसमें हम मोस्टली अपने आइडियाज़ को वैलिडेट करते हुए रहते हैं। उस स्टेज पे कहीं ना कहीं हम मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट सर्च कर रहे हैं या मार्केट में टेस्ट कर रहे हैं, उस स्टेज पे आ गए तो हम इस स्टेज को में फॉल करते हैं, जिसमें हम आइडिएशन से बाद वाला ये है। बट यहाँ पर हमारे बिजनेस जो है अभी वैलिडेट होना है। तो वैलिडेट होने के लिए जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उस स्टेज के लिए अगर हमें फंड चाहिए तो यहाँ पर जो है इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं फंड को, और गवर्नमेंट के डिफरेंट लोन स्कीम्स है वो दे सकती हैं। तो अगर इस स्टेज पे है तो यहाँ पर मोस्टली इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो वहाँ पर आपको रजिस्टर होना होता है, और incubators after testing your model, testing the kind of growth you have achieved, they decide कि आपको फंड हो सकता है या नहीं हो सकता है based on the parameters which government has provided to them। गवर्नमेंट के डिफरेंट लोन स्कीम्स है जिसको भी आप फुलफिल कर सकते हैं। सिड भी है जो कि डिफरेंट लोन्स देता है उस केस में। तो इस स्टेज पे आपको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको टेस्ट करना होता है, जहाँ पर आप जाकर फंडिंग रेज कर सकते हैं। थर्ड स्टेज होती है, यहाँ पे एक एंजल इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग का भी एडिशनली आप कर सकते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी को एंजल इन्वेस्टर जैसा किसी ने आप पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या कोई बिजनेस है जो जिसको लगता है कि देयर इज ए पोटेंशियल टू इट, तो वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फंडिंग करनी है। क्राउड फंडिंग इज अनदर फॉर्म विच यू कैन ऑप्ट फॉर, जहाँ पर डिफरेंट क्राउड फंडिंग या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जिसके थ्रू क्राउड फंडिंग पॉसिबल होते हैं। ये एक नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट स्टेज है अर्ली ट्रैक्शन, जहाँ पर आपका बिजनेस एक तरह से फ्लाई करने के लिए तैयार है, एक तरह से अलग लेवल पे जाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर जब फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इस स्टेज पे यूजुअली सीरीज ए स्टेज होता है फंडिंग का, जिसमें सीरीज ए स्टेज में फर्स्ट रेज वेयर यू आर रेजिंग फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट एंड ऑल। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, जिनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होगी, आपको उनको मीट करना होगा। जैसे वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, वेंचर डेप्ट फंड्स हो गए। तो ये सारे ऑप्शंस इस स्टेज पे आपको आपके पास होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। बट इसमें सभी चीज़ों में एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका अपना बिजनेस मॉडल क्या है, आपने कितना ग्रोथ अभी तक अचीव किया है, आगे उस बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट में कितनी लाइक्लीहुड लगती है कि वो बिजनेस को आगे ले जा पाएगा, स्केलेबिलिटी है नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे टेस्ट होता है, बिकॉज वेंचर कैपिटल जब जब इन्वेस्ट करती है या बैंक्स करते हैं तो इनका बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको फुलफिल करना होता है। बट एट द सेम टाइम अगर कोई जेन्युइन सा स्टार्टअप है तो फंड उसको मिलते हैं। अगर आपके पास जेन्युइन सा स्टार्टअप है जिसमें आपने अच्छा बिजनेस किया है तो फंड्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कुछ एक्सेजरेट करना होता है चीज़ों को। फोर्थ स्टेज इज स्केलिंग। यहाँ पर हम जो सीरीज करते हैं वो BCDE का करते हैं, जहाँ पर लेट स्टेज, यहाँ पे जब आप बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तब इस स्टेज में आते हैं। और ये स्केलिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज अगर आपका इस स्टेज तक आने तक ये तो समझ में आता है कि ये आपका जो मॉडल है वो दैट इज वर्किंग और पब्लिक इंटरेस्ट है, तो आपके पास उसको स्केल करने के लिए फंड चाहिए। देन वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म्स ये सब आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, प्लस गवर्नमेंट से भी ग्रांट होते हैं, वो भी मिलते हैं स्टेज पे। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रिपरेशन और आपका प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज कैसी है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो स्केलिंग के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जो अर्ली स्टेज है उसके लिए स्केलिंग लेवल पे आपकी फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बिकॉज आप एक स्टेज पे आकर सेट हो गए हो और आपने एक स्टेज पे आकर मार्केट के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंस बना ली, एक अपनी पहचान बना ली। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज यहाँ से उनको अपने रिटर्न्स भी दिखते हैं। सो ये एक क्रूशियल सा फेज बनता है जहाँ पर वो पहले ड्यू डिलिजेंस करते हैं और फिर दे इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप्स। जो लास्ट होता है इस पूरे फंडिंग कॉन्सेप्ट में वो एग्जिट ऑप्शंस होता है इन्वेस्टर्स का। जब आप इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लेते हो तो आपको उनको बताना भी होता है कि आप कैसे एग्जिट दोगे, बिकॉज उनका इंटेंशन आपके बिजनेस को चलाना नहीं होता, उनको अपने पैसे के अंदर रिटर्न लेना होता है।
तो एक तो उनका एग्जिट ऑप्शन ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को किसी और को सेल कर देते हैं, किसी और इन्वेस्टर बैंकर को कर दिया या एफआईआईस को कर दिया, डिपेंडिंग ऑन कि किनके साथ उनके क्या टर्म्स हैं। दूसरा होता है कि जब आईपीओ आती है, अगर एक अच्छा स्टार्टअप जब एसएमई आईपीओ या फुल फ्लेज आईपीओ लाता है, उस केस में भी उनका एग्जिट होता है, बिकॉज द शेयर्स बिकम पब्लिकली ट्रांसफरेबल, और जहाँ पे आप एक्सचेंज के थ्रू अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक आईपीओ के थ्रू भी उनका एग्जिट होता है। या फिर अपने वो शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को भी बेच सकते हैं, या फिर जो कंपनी है जिसके प्रमोटर्स है वो खुद ही उन शेयर्स को खरीद लेती है। तो इट डिपेंड्स कि जो आपका जो इन्वेस्टर्स है वो उसका थॉट पैटर्न क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और बिजनेस का जो शेयर्स है, जो अंडरलिंग शेयर्स है, उसकी वैल्यू क्या बन रही है मार्केट में, और वो उस कंपनी ने क्या ऑप्शंस रिजॉर्ट किया। अगर वो आईपीओ में जा ही नहीं रहा, इन दैट केस जो इन्वेस्टर है वो किसी और को भी शेयर सेल कर सकता है, या फिर प्रमोटर हो सकता है उसको लगे मेरा बिजनेस अभी बहुत अच्छा चलना है, तो वही बाई बैक कर लेगा इन्वेस्टर से। तो इट डिपेंड्स, बट ये है कि जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करता है तो उसको पता होता है कि उसको निकलना कैसे है, वो उसी ही हिसाब से वो अपने एग्रीमेंट्स को करता है। तो ये सबसे लास्ट फेज होता है इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पर वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर कर वो बाहर निकल जाता है और बिजनेस आप अपना फिर कैरी ऑन करते हैं। These are the steps which needs to be fulfilled for getting the startup fund startup के लिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, किस क्या चीज़ नीड है, आपकी नीड, फंडिंग की नीड क्यों है। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट रेडीनेस होना चाहिए कि अगर फंड आएगा तो मैं कैसे यूज़, हमें कैसे करना है, क्या 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 करना है, उसके लॉजिक्स है, बनते हैं नहीं बनते हैं, बिकॉज एवरीथिंग विल बी चेक्ड बाय द इन्वेस्टर कि आपको फंड चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या नीड है और कैसे आप यूज़ करोगे। फिर आप एक प्रिपरेशन पिच डेक बनाते हो जहाँ पर आप उसको अपने पूरे लाइफ साइकिल को दिखाते हो कि अभी तक आपने क्या अचीव किया, आगे प्रॉक्सिमिटी क्या है। यूजुअली 5 years का प्रोजेक्शंस बनता है कैश फ्लो का, जहाँ पर आप दिखाते हो कि मुझे अगले 5 साल में क्या क्या मुझे मिलना है, कैसे मेरा फंड फ्लो रहेगा, मुझे क्या रिटर्न आएगा, और मैं क्या इन रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे सकता हूँ। फिर वो इन्वेस्टर्स टारगेट करते हैं किस टाइप के इन्वेस्टर्स को चाहिए और कैसा पैसा चाहिए, डेब्ट में चाहिए, इक्विटी में चाहिए, मिक्स चाहिए, गवर्नमेंट से ग्रांट चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड। फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होता है इंटरेस्टेड वेंडर्स का, इन्वेस्टर का। वो ड्यू डिलिजेंस करती है कि जो आप बोल रहे हो वो सही है या नहीं है, कंपनी ने अभी तक क्या, जो एंटिटी है अभी तक उसने सारे लीगल कंप्लायंसेस किए हैं नहीं किए हैं, उसके सारे रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, या फिर जो वो रेवेन्यू दिखा रहा है वो एक्चुअली में रेवेन्यू हुआ है नहीं हुआ है, अगर जीएसटी है तो जीएसटी पे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सारे एंगल से वो चेक करती है कि ऐसा ना हो कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई सरप्राइजेस उसके पास आए, या फिर जो नंबर्स वो बता रहे हैं वो नंबर्स गलत हैं, या जो आगे प्रोजेक्शंस कर रहे हैं उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो सारे एंगल्स को इन्वेस्टर्स चेक करता है इस स्टेज पे। और उसके बाद लास्ट स्टेज में वो टर्म शीट डिसाइड होता है कि जिस कंडीशंस पे वो इन्वेस्टमेंट आना है, और उसके अंदर सारे टर्म्स होते हैं कि कैसे, कब आना है, पैसे को किस फॉर्म में लेना है, कैसे इसको रिटर्न करना है, दोनों पार्टी का रोल क्या होगा, और कोई ऐसा इवेंट होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो सारी चीज़ टर्म सेट्स के थ्रू डिसाइड होती है। बेसिकली ये एग्रीमेंट होता है जो दोनों के बीच होता है, इसको शेयर परचेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नॉर्मली इन्वेस्टर्स क्या ढूंढते हैं स्टार्टअप्स में। सो फॉर यू, आपको भी ध्यान देना है कि भाई मेरा जो स्टार्टअप्स है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट ला रहा हूँ तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेरी चीज़ में होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि जो आपका स्टार्टअप है वो क्या एड्रेस कर रहा है, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एड्रेस कर रहा है वो कितना रिलेवेंट है, वो कितना ड्यूरेबल है। ऐसा तो नहीं है वो इमीडिएट प्रॉब्लम है और बाद में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है फर्म का, ये बिजनेस का, वो क्या है, उसको वो डिसाइड करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। आपकी टीम कैसी है, जो लोग काम कर रहे हैं या आप कर रहे हो, आपका आप आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपका पहले का हिस्ट्री क्या रहा है, आप कैसे कैसे आप इस काम को कर रहे हो, तो आपके साथ क्या एक्स्ट्रा है जो बाकियों के पास नहीं है। मार्केट लैंडस्केप कैसा दिखता है इन्वेस्टर्स को, क्या दिखता है, उसके लिए मार्केट रहेगा या कुछ चेंज हो जाएगा, कितनी स्केलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी है प्रोडक्ट में, प्रोजेक्ट में, वो चेक होता है। कस्टमर्स और सप्लायर्स कौन से हो सकते हैं, पर्सपेक्टिव कौन से कस्टमर्स हो सकते हैं, कौन से सप्लायर्स हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत रेयर है, या वो इम्पोर्ट होता है जो कि बड़ा डिफिकल्ट है, या ऐसे कंट्रीज होता है जहाँ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस सारे एंगल्स को उनको चेक करना होता है, सो दैट कि
दे कैन इवेलुएट प्रोबेबिलिटी कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है वो रियलिस्टिक है नहीं है, और एक कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जिसमें आप वो देखते हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरह से प्लेस्ड हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप इस कंपटीशन बहुत फियर्स कंपटीशन है और आपका पोजीशन बनना डिफिकल्ट है। सो ऑल दोज पॉइंट्स इन्वेस्टर देखता है स्टार्टअप्स के अंदर, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि उनका पैसा सेफ रहे और जो वो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिटर्न उनको मिल जाए। 7 पॉइंट्स इसके अंदर आता है स्केल, सेल्स और मार्केटिंग टीम कैसी है कंपनी के पास जो कि यहाँ पे जो स्टार्टअप्स को मैनेज कर रही है। फाइनेंशियल असेसमेंट क्या है, उनके कैश फ्लोज कैसे हैं, उनका इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, कौन कौन से की माइलस्टोन्स है जो उनको जो जो उनके प्रोस्पेक्ट से अचीव करना है। ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है इनका, बिकॉज ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द कॉस्ट बिकम्स न्यूट्रल टू द रेवेन्यू। उसके बाद कंपनी प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करती है। तो ब्रेक इवन किस स्टेज पे आएगा, ऐसा तो नहीं है बहुत सारा ईयर लग जाएगा ब्रेक इवन आने में। ग्रोथ रेट्स क्या है, किस स्पीड से ग्रोथ कर रही है। और लास्ट पॉइंट है एग्जिट एवेन्यूज कौन कौन से, कैसे एग्जिट होगा, किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है इस बिजनेस से आफ्टर अर्निंग साइजेबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न। तो ये सारे पॉइंट्स इन्वेस्टर्स देखता है किसी भी स्टार्टअप्स में बिफोर दे डिसाइड ऑन द इन्वेस्टमेंट। अभी ये हमने इन्वेस्टर्स पर्सपेक्ट से भी कर लिया और कंपनी साइड से भी कर लिया। जब आप अब आपको ये लगता है कि आपको स्टार्टअप के बेनिफिट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, आपने बजट में भी सुना होगा स्टार्टअप्स इंडिया के लिए प्रमोशंस होती हैं और बहुत सारे स्कीम्स है जो स्टार्टअप इंडिया के लिए आते हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो स्टार्टअप इंडिया में क्वालिफाई कैसे करेंगे, स्टार्टअप इंडिया बनेंगे कैसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि जो आप स्ट्रक्चर चूज कर रहे हो वो केवल प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म, इसी तीनों एंटिटीज को ही स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन क्या है, ये DPIIT एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो उसके कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसको आप जब फुलफिल करते हो तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलती है जिसको हम स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसका एक नंबर होता है, जब आपके पास वो नंबर मिलता है देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द डिफरेंट स्टार्टअप स्कीम। तो बिजनेस स्ट्रक्चर आपका पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और LLP और पार्टनरशिप फर्म ही होना चाहिए, और कोई स्ट्रक्चर एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको प्रोप्राइटरशिप आपने स्टार्ट किया और आपको स्टार्टअप फंड मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। आपको अपने पहले कंपनी बनानी पड़ेगी और देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द स्टार्टअप इंडिया एंड देन ओनली यू कैन गेट द फंड। अगर आप सब्जेक्ट टू आपका जो मॉडल है, जो आपका जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है वो आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं। एज ऑफ द स्टार्टअप्स, तो जो होता है मोस्टली 10 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन, और स्टार्टअप 15 years तक में स्टार्टअप ले सकते हैं, बट 10 years फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन से ज़्यादा यूजुअली इंकरेज नहीं करते हैं उसको। उनका जो रेवेन्यू है, जो फर्म का जो रेवेन्यू है वो 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली जो आप जिस चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हो वो इनोवेटिव होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के उसमें कैपेसिटी होना चाहिए। अगर इसमें इनोवेशन नहीं है तो फिर द चांसेस आर वेरी लेस जहाँ पर वो आपको स्टार्टअप फंड देंगे या स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। DPIIT रजिस्टर्ड करेगा, बट यूजुअली ये रजिस्टर्ड कर लेते हैं। अगर आपने किसी चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट किया तो यूजुअली वो कर लेते हैं। DPIIT का रिकॉग्निशन मिलता है और DPIIT के रजिस्ट्रेशन के बाद आप स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हो। जैसे ही आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होते हो तो उसके बाद एक जो इसमें सबसे बड़ा इंसेंटिव ये होता है कि 3 years का आपको टैक्स फ्री ईयर मिलता है आउट ऑफ 10 year। बट उसके लिए सेपरेटली आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डालनी होती है और उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। बट उससे पहले जो टोल गेट है वो आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन का ही है। तो स्टार्टअप जब आप रजिस्टर्ड होते हो उसके बाद ही आप बाकी चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंडिंग है जो स्टार्टअप्स को मिलती हैं, जिसमें से बेसिकली इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 फॉर्म्स। एक सिडबी का फंड ऑफ द फंड स्कीम होता है जो सिडबी प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को। बट ये सिडबी जो है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो होते हैं उसके थ्रू रूट करती है। ये डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं फंड करती, वो डिफरेंट वेंचर कैपिटल्स को देती हैं फंड और वो वेंचर कैपिटल्स फिर आगे जाकर
स्टार्टअप्स में फंडिंग लगाती है, बट ये जो कंट्रोलिंग है वो सिडबी के थ्रू होता है। गवर्नमेंट ने इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए कॉर्पस रखा है, जो कि सिडबी मॉनिटर करता है और सिडबी इसको कंट्रोल भी करता है, बट इन्वेस्टमेंट का जो रूट होता है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू होता है। तो जैसे आपने स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन कर लिया और आपको लगता है कि आप किसी फंड के लिए एलिजिबिलिटी है, तो यू कैन अप्लाई देयर, और वो इवेल्युएट करने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको फंड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। जो सेकेंड फॉर्म्स ऑफ जो फंड है वो होता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। सीड फंड स्कीम जो है वो डीपीआईटी मैनेज करती है इसको, जिसके अंदर 945 करोड़ का फंडिंग है। और ये बेसिकली जो रूट होता है वो इनक्यूबेटर्स के थ्रू रूट होता है। इनक्यूबेटर्स होते हैं वो इनक्यूबेटर्स जो कि स्टार्टअप को इनकरेज करते हैं। तो हर एक स्टेट में अपने इनक्यूबेटर्स है जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। उस इनक्यूबेटर्स में जाकर आपको फर्स्ट रजिस्टर्ड होना होता है, वहाँ पर जाकर अपने मॉडल्स को बताना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वो इनक्यूबेटर्स आपको हेल्प करते हैं टू सिक्योर द फंड। तो जब इनक्यूबेटर्स आपके एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट में अप्रूवल के लिए डालते हैं, उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर आप मीट करते हैं तो इनक्यूबेटर्स आपको फंडिंग करता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको फुलफिल करना है तो आपके पास पहले आपको इनक्यूबेटर्स डिसाइड करना होगा और वो इनक्यूबेटर्स में जाकर रजिस्टर्ड करना होगा। ये कुछ डिफरेंट कैसे ये वर्क करता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टार्टअप्स की, ये सारा कुछ जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। बट मोर इम्पोर्टेंटली ये ज़्यादा जो जो इसमें जो स्टार्टअप्स आते हैं वो 2 ईयर्स से ज़्यादा पुराने नहीं हो सकते। आपके पास एक वायबल बिजनेस आइडिया, इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विस होना चाहिए। आप कोई ज़्यादा कॉमन चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते यहाँ पर, वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। और मोस्टली जो है वो फंडिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो फंडिंग गवर्नमेंट जो करती है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं करती इस हेड में, 10 to 20 लाख से करीब। बट इसके अंदर आप जब जाओगे तो आपके पास पहले से गवर्नमेंट का जो फंड है 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो लास्ट स्टेज जो थर्ड कैटेगरी है फंडिंग की, गवर्नमेंट जो हेल्प करती है वो करती है जब आप क्रेडिट गारंटी स्कीम के थ्रू जाते हो। इसके अंदर अगर आपने लोन प्रोवाइड किया है तो बैंक्स जो एक कोलैटरल की रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बैंक्स को देती है। और आपके पास लाइकलीहुड ज़्यादा होती है लोन्स लेने की, बिकॉज कोलैटरल जो है आपके बदले गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसके कुछ क्राइटेरिया जो मीट करने होते हैं, बट कोलैटरल फ्री लोन जो है स्टार्टअप्स को मिल जाता है, जो एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। बिकॉज यूजुअली स्टार्टअप्स के पास कोलैटरल्स होते नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है सो दैट कि वो आपके जो जो क्रेडिट है, जो आपका जो कोलैटरल्स है, वो उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। So you can upload the video like the PPT once again. I think there's an error and the PPT is not visible right now. Okay, Yeah. just a minute. Is this fine? Yes, sir. It's fine. Yeah. सो ये बेसिकली स्टार्टअप्स के लिए ये 3 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अंडर वेरियस स्कीम्स। हर एक हेड्स के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपका स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन, और सेकेंड थिंग एक बोनाफाइड बिजनेस होना चाहिए। बोनाफाइड बिजनेस विद द बोनाफाइड नंबर्स। Okay, so the last phase of this the talk is जब आप कोई स्टार्टअप करते हो तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर रहे हो। तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है, बिकॉज वो क्रूशियल हो जाता है। वो ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको लगता है कि चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे हैं, बट वो होती नहीं है। सो आपको ये चीज़ बड़ा फोकस करना है कि आपका कुछ एंगल्स जो एज फार एज फाइनेंशियल कंप्लायंस इज कंसर्न वो प्रॉपरली एड्रेस्ड हो। और उसके लिए कुछ पॉइंटर्स है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। फर्स्ट वन इज दैट आपको अपने फाइनेंसेस और बिजनेस फाइनेंस के बीच में आपको डिस्टेंस, आपको एक डिफरेंशिएट लाना पड़ेगा, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। बोथ आर डिफरेंट, यू नीड टू ट्रीट दैट पार्ट एज अ डिफरेंट। अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो रहा है। अगर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप ऑप्ट किया है या आपने पार्टनरशिप ऑप्ट किया है, और अगर आप बहुत इस चीज़ को लेकर के पर्टिकुलर नहीं हो, तो आपको बिजनेस में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका आइडिया, उसका रियलाइजेशन थोड़ा बाद में लगेगा।
सो इट्स बेटर टू हैव अ सेपरेट पर्सनल बिजनेस फाइनेंसेस, जहाँ पर आपके पास सेपरेट बिजनेस अकाउंट होगा, बिजनेस और रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों के सेपरेटली बुक होंगे, और टैक्स कंप्लायंस में भी इसमें इजी होता है जब आप ऐसे मेंटेन करते हो तो। सेकेंड वन इज कि आपकी फाइनेंशियल प्लान और बजट, ये आपकी बहुत एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि मुझे स्टार्टअप्स में कितने पैसे लगाने हैं, उसका बजट क्या है, कौन कौन से हेड्स हैं, क्यों वो हेड है, उससे मुझे क्या रिटर्न आएगा, ये फाइनेंशियल प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज आप सिचुएशन को हैंडल करते करते अगर आपके पास बजट नहीं है तो यू स्टार्ट कमिंग इनटू दिस फायर फाइटिंग मोड, जहाँ पर आप पैसे भी खर्च हो रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्यों हुआ। सो फाइनेंशियल प्लान बहुत जरूरी है। आपका बिजनेस प्लान इज फाइन, बट फाइनेंशियल प्लान भी बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल प्लान अलॉन्ग विद द बजट, कि मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में कितना बजट चाहिए, कैसे मैं यूज करूंगा, अगर मेरे पास फंड आता भी है तो मैं कैसे यूज करूंगा, एंड स्टिक टू दैट बजट। जहाँ पर कोई डेविएशन होता है तो आइडेंटिफाई करें कि क्यों डेविएशन हो रहा है, क्या रीजन से, मेरी प्लानिंग में कहाँ प्रॉब्लम होगी, सो दैट कि आप कंट्रोल कर सकें उसको। तो अनलेस कि आपके पास बजट नहीं है और फाइनेंशियल प्लान नहीं है, वो कंट्रोल आप कर ही नहीं पाएंगे। सो एक फाइनेंशियल प्लान और बजट होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज द कैश फ्लो मैनेजमेंट, बहुत बहुत क्लियर होना चाहिए और बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट इन द सेंस कि इट शुड बी अपडेटेड, सो दैट कि जब भी हमारे पास कैश फ्लो आउटफ्लो का सिचुएशन हो तो आपको समझ में आए कि मेरा नेगेटिव फ्लो जा रहा है या पॉजिटिव कैश फ्लो, बिकॉज कैश इज द किंग। अगर आपके बिजनेस में कैश नहीं है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग कोई आपके पास सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो आपके सारे अकाउंटिंग को कर ले, सो दैट कि जो रिपोर्ट्स जनरेट करे उससे आपको हेल्प मिले बिजनेस में डिसीजंस लेने में। यूजुअली क्या होता है, बिजनेस जब छोटा होता है तो लोग अकाउंटिंग को इग्नोर करते हैं और बाद में उनके पास सरप्राइजेस आते हैं। अभी अकाउंटिंग रखना और अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन रखना बहुत सस्ता है। सो you can have any example set any accounting software which help you in booking the all those accounting transactions। तो वो आपको करेक्ट रिपोर्ट भी बताएगा और आपको ये भी हेल्प करेगा बिजनेस को डिसाइड करने में कि मुझे क्या डिसीजंस लेने। देन यू नीड टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट। आपका ध्यान हमेशा इस चीज़ पे रहना चाहिए कि कौन सा कॉस्ट ऐसा है जिसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकूं, कैसे बर्न रेट को कम करूं, सो दैट कि आप ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से अपने बिजनेस को चला पाओ। प्लस आपके पास जब फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो मल्टीपल स्टेप्स को आप इवेल्युएट करो, कौन कौन से हमारे पास फंडिंग सोर्सेज हैं जिसको मैं यूज़ कर कर अपने स्टार्टअप्स में ला सकता हूँ, जिसमें बूट स्टेप इनिशियली एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, सिडबी का फंड है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपको दिखाता है कि आपने क्या अचीव किया, कहाँ पर क्या इश्यूज रहे। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो वो भी दिखेगा कि किससे नहीं आ रहे हैं। अगर आपने जीएसटी पे किया और सामने वाले ने क्रेडिट नहीं दिए वो भी दिखेगा। सो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना जरूरी है, आपका साइज कोई भी रहे। इनिशियली लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, बट वो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके रिकॉर्ड्स प्रॉपर फाइनेंशियल्स होना चाहिए, सो दैट कि आप कुछ रिपोर्ट्स को जनरेट कर कर देख भी सकें कि आपके पास इंपॉर्टेंट जो बिजनेस के पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स में आप परफॉर्म कैसा कर रहे हो। और और पॉसिबल हो तो कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट, एडवाइजर, सीएफओ ऐसा कुछ रखें जो कि आपको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड एंड टू कैरी ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। बिकॉज फाइनेंशियल एंगल से आपको चीज़ों को देखना, समझना और उस पर डिसीजंस लेना बड़ा ही क्रूशियल हो जाता है। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है अपने बिजनेस में, जिसमें और उस मैट्रिक्स को आपको कंट्रोल करना है, आपको ट्रैक रखना है उसका। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, बर्न रेट हो गया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, मंथली रिकरिंग रेवेन्यूज हो गया। ये इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इट डिपेंड्स करेगा कि आपके बिजनेस के अंदर क्या सुटेबिलिटी है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। बट आपके पास की पैरामीटर्स, फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्लियर होने चाहिए कि मुझे ये पॉइंट पे अपने बिजनेस को रेगुलर इंटरवल्स पे इवैल्यूएट करते रहना है। और रेगुलर फाइनेंशियल रिव्यू जो कि आपको हेल्प करेगा बताने में कि आपने क्या अचीव किया और कहाँ पर इश्यूज हैं जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन द स्टार्टअप, द होल इकोसिस्टम ऑफ द स्टार्टअप एंड द फाइनेंस। टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बट मैंने ट्राई किया कि आपको जो एक एक बेसिकली एक बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, सो दैट कि जब आप स्टार्टअप के लिए थॉट प्रोसेस रहे आपका तो आप इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स को डिसाइड करो। यस प्लीज। या
Yeah, sir, one of the question that is being asked by Bandapalli sir, that sir, if in case partnership deed cancel, another कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स है, another partner can open any same business or nearby 1-2 kilometer radius. इट डिपेंड्स कि आपके आपके पार्टनरशिप का एग्रीमेंट में क्या था। अगर एग्रीमेंट में ये था कि हमने एक दूसरे को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आप बिजनेस नहीं करोगे दूसरा सिमिलर बिजनेस, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आपका ओपन है तो यू कैन डू दैट। उसमें ना तो डिस्टेंस मैटर करता है और ना एरिया मैटर करता है। द ओनली थिंग मैटर्स इज कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके एग्रीमेंट्स क्या हैं और उसका टर्म्स क्या है। So students, right now as sir has completed telling you about the whole structuring, raising and managing finance for a startup. If you have any query, please write it in the chat box which is related to this topic, Agri Startup Decoding. Further, whatever queries are there that I and Baswati will answer later. So if you have any query, please write. I think some of the students have asked, but these were the queries I will answer later. So any student having anything, they can please write in the chat box or they can unmute as well now. You can unmute and Hello. you can. Hanji. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sir, I have one question. While making a startup for a company, which is the most important thing that we need to notice? Because a startup company requires partner. So, sir, how can we find that? Because in a company there are 4 kinds of quarter: Q1, Q2, Q3, Q4. So for a startup company, what is the most important challenge that we need to do? I'm not very clear about the question, but the point is that the first important thing is that you need to decide the capacity in which you want to do the startup. राइट। इस कैपेसिटी मीन्स कि कौन सा आपके पास कौन सा व्हीकल होगा। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहते हो, कंपनी के थ्रू जाना चाहते हो, और आप जिस भी थ्रू जाना चाहते हो उसकी जो रिक्वायरमेंट है आपको फुलफिल करनी होगी। इन टर्म्स ऑफ जैसे आप कंपनी बनाना चाहते हो तो एटलीस्ट यू नीड टू हैव 2 पर्सन्स, राइट। अगर आप एलएलपी बनाना चाहते हो तो 2 लोग होने चाहिए जो आपके साथ वो बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट हो, किसी को नहीं लेना चाहते, तो सोल प्रोप्राइटरशिप अपना सकते हो, बट इन दैट केस यू कैन नॉट बी गेट रजिस्टर्ड विद द स्टार्टअप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको किस तरीके से बिजनेस को करना चाहते हो, क्या लीगल फॉर्म आप चूज कर रहे हो, है ना। प्रोप्राइटरशिप चूज करना चाहते हो, पार्टनरशिप चूज करना चाहते हो, या फिर आप कंपनी बनाना चाहते हो, ये बड़ा क्रूशियल होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट। यस। एंड सर एक और क्वेश्चन है, जो मंथली रिकरिंग एक्सपेंडिचर होगा कंपनी का, मतलब उससे हाउ कैन वी एस्टिमेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एट द एंड ऑफ अ मंथ? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए क्या होता है, जो आपके बिजनेस के अंदर डायरेक्टली जो रेवेन्यू को अर्न करने में जो डायरेक्ट कॉस्ट लगता है, वही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आता है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, उसका प्राइस 100 है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, सेल प्राइस 100 है। अब उस प्रोडक्ट को बनाने में जो डायरेक्ट खर्च हुए उसको आप रिड्यूस करेंगे, जो बच जाएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। और उसका अगर आप सेल्स के साथ रेशियो निकाल लेंगे तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो आएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन है सर, वो है बर्न रेट। जो बर्न रेट है सर, वो कैसे एस्टिमेट करे? बर्न रेट ये होता है कि आपके पास जो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है, जो आपके पास ऑलमोस्ट फिक्स है, उसको आप कैसे मैनेज करें। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि आपके बर्न का मतलब नेचर क्या है और उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए कोई सिंगल फॉर्मूला तो नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस इन टर्म्स ऑफ कि आपके कितने क्या इसमें कितने कॉस्ट जा रहे हैं और कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर, मंथली फाइनेंशियल एनालिसिस। फॉर एग्जांपल सर, इफ वी हैव अ नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी लाइक क्वालकॉम, so sir, in some days we see that there is a positive growth of the company, but sir, whenever we see a declining quarter, means a declining week, so how can we manage and
and make strategies so that this decline can be overcome? It depends that what is the nature of the business. Like there can be a situation where you are there is a decline in the revenue due to the season nature of the product or your nature of the business. So it entirely depends on the kind of business which you are carrying. However, in case if it has nothing to do with the seasonal character or is nothing to do with the like there is a permanent decline in the business, then you have to examine that what are the sales strategies, the kind of persons you are deploying to do the sales, and also all those things come into the picture. But it entirely depends on the kind of business, kind nature of the product in which you are dealing. And more importantly, uh, you need to have a person who is sound in the finance, who should prepare the financials. Then only you can decide on the course of action, because there are times when there are certain expenditure, there are certain incomes which doesn't come in for few months, then it will come in the next quarter. So you need to while making the preparing, while evaluating the your monthly statements, you need to take care of that portion as well. So you need to have the qualified person who is preparing this, so that he can factor in all those things which has some role in the your financial statements. Okay. Okay, sir. Sir, another thing that we face challenges is the cost cutting and the revenue enhancement. Sir, this Saptarshi, if you could first specify what business you are doing or what exactly, your questions are very legit. But can you first specify what business you are doing where you are facing all these challenges? Because that would be helpful to other participants as well. okay. First of all, I have one research company which is enhancing in multidisciplinary domains, sir. One is nanotechnology, another is food technology, another is biotechnology, and another is phytoatomy. This is basically enhancing customers. But sir, whenever we face this, that there is a negative growth, because these four company I am associated with. But sir, what problem is we facing, that in some quarter it's going up, but the real challenge comes up whenever we see that there is a declining growth in some months. For example, my January month has gone well, February month has gone well, but this 15 to 20 days, what problems we face is that product not able to market well, and what these kinds of problem, that is the burn rate we have having problem. In some cases we need to identify the areas of the cost cutting and the revenue enhancement. So how can we improve and scale our growth? So that's my question, that That's what. you have a very valid question, but there is a no uh, there is a no, this is a very subjective answer. This will come, like somebody has to look at it, your see the financials, closely monitor each and everything, then only one can decide that what can be the reason. But above all, you need to have a few things, few key parameters which you should evaluate on a periodical basis. It can be anything, like what all parameters which are very crucial to your, like number of leads, like the kind of leads you are generating, all those key parameters which has a role in increasing your sales. You need to identify that, and then you need to track that also. So you need to have that kind of reporting system which would generate that kind of information for you. Then only you can decide that whether those key parameters are getting fulfilled, or is there in where is the problem. It's a whole thing that is getting there is a problem, or it is a single specific thing which is creating trouble for you. So what I'm trying to say that it's a very subjective thing which cannot be answered in one liner. But yes, you need to identify your business key parameters. You need to review that key parameters, that how they are performing, what should be the standards of that parameters, and how you are doing, what is the score of yours during the period for which you are doing the evaluation. Okay.
So just concentrate on identifying the key things which are very crucial to securing your sales, and then start evaluating those key things. Okay. Saptarshi, I would also add on that point, as sir has given you the technical and the specific answer on that part. You could write us an email. I will give you an email ID that we can get you connected later on. Okay. So rather, because there are so many questions, and I appreciate you have asked all the genuine questions only. So that's good. Saptarshi, is it fine? You may not be able to unmute. Now you can unmute. Yes, sir. Sir, Okay. it would help me so that I can better up my customers. That is what is written in the point, that is customer acquisition cost. It's really very important because we need to identify, we need to generate leads in such a way that customer main focus will be on the customers, because customers are the gold of the company, because we need to provide better products. Once they see the products, they will revisit again and again. That's the thing which sir was telling, that we need to focus, because if the product is good, they will continuously focus on product marketing. So True. that's how. True, Saptarshi. And more importantly, you need to just also identify that what are the key crucial parameters which your business carrying, and then start finding ways in which you can generate reports on getting the performance on those parameters, which would help you greatly in controlling your business. And as Amit rightly said, just share with us your problem. Just mail us. I will give you the more elaborate answer to your specific query. Okay. Yes, sir. Sir, I have two more questions. One, Hmm. Shashank Dwivedi is asking which document are essential to start a startup. Very broad question because I had to be specific. So it Next has to question. be like, it depends on the kind of a structure with which you are going. Yeah. And I mean, it all depends on that only. In case if you're opting for the sole proprietorship, then you need to only your PAN as well as few documentation like MSME certificate and GST registration to get the account open, current account open. Then you can do the business. However, in case of a company, there's altogether different requirements, like you need to have a 2 directors, 2 shareholders. So it depends on the kind of a structure with which you are going. Yes. So Sahil is asking, good afternoon, sir. Can we start business on our farmland or of any product whatsoever and sell it without telling to the government? Sorry, what he said? Can we He start? said, can we start a business on our farmland of any Yes. product whatsoever and to sell it without telling to the government? Yes, you can do that, but once you sell the product in the raw form, that's fine. But once you start processing it, somewhere or other where you need to get the approval for that. So it's not like that that you are processing something, you are changing the product, then you have to get somewhere registered, like FSI or in GST or whatever. But if you are selling in the raw form, maybe that there is a no registration would be required. Yes, sir. One more question that has come. How did you finance your startup in early stage? Shubham Kumar is asking that how he is able to. Mostly it is through your own fund or funds from the near and dear one, because that is the only fund which you can bank on. Otherwise, getting funds from the government at the initial age is very difficult because you have nothing to show them. But yes, in case if you have some patented product, some very good thing which is not there in the market, one can try for that. Government also provides encouragement for by granting the loan fund, the fund which is not interest bearing, but it depends on the kind of product with which you want to go with the in the market. Yeah, Isaac, you have any question? Yes, sir. Yeah, please give your brief introduction, your name and what you are doing. सर मैं एक्चुअली एक छोटा बिजनेस कर रहा हूँ सर, अन्नपूर्णा हॉस्टल्स एंड उडुपी's किचन करके मध्य प्रदेश में, एंड along with MSc also in going का कॉलेज. सर एक्चुअली मेरा डाउट क्या है ना सर, अगर किसी पार्टनर एक आदमी से पार्टनरशिप किया है सर,
पार्टनरशिप डीड में मतलब 2 बंदे पार्टनरशिप डीड करता है, एक बंदे पार्टनरशिप डीड कैंसिल करके अभी एक रेस्टोरेंट मान के चलिए सर, एक रेस्टोरेंट में अभी उडुपीज किचन है, कुछ लोगों में कुछ चेंजेस करके दूसरा मतलब उसी लोकेशन में कोई लोकेशन में वो पार्टनरशिप डीड कैंसिल करने के बाद वो लोगों में कुछ चेंजेस करके उसी नाम से अगर दूसरा पार्टनरशिप खोल सक मतलब दूसरा पार्टनर खोल सकता है क्या सर? वैसे मतलब नहीं, उनसे नाम अपन कैसा? नहीं ना, देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक, नाम से नहीं खोल सकता, नाम आपके साथ वो था, रजिस्टर्ड था, तो वो नहीं जी खोल सर। सकता। दूसरा, आपका टर्म्स एंड कंडीशन अगर किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, नॉर्मली क्या होता है पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस ये कहते हैं कि हमने जो लोग को एम्प्लॉय किया है वो हम किसी और कोई और उसको लेके नहीं जा सकता, ब्ला ब्ला जो भी होते हैं। अगर वैसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तब तो वो कर सकता है, बट सेम नाम यूज नहीं कर सकता है। लेकिन वो नाम पे कुछ चेंजेस अभी उडुपीस किचन है, उडुपीस किचन्स एंड मोनो जो भी लोगो है, लोगो में कर सकता है, अगर आपने ट्रेडमार्क अप्लाई, अगर आपने उसमें चेंजेस ले कर सकते दिया हैं है सर उसके अंदर, मतलब। हाँ अगर उसने चेंजेस उसमें कुछ कर दिया है तो ही कैन डू दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जी ट्रेडमार्क तो लिया नहीं होगा उस मार्क का, लिया है आपने ट्रेडमार्क? कह सकते हैं ट्रेडमार्क तो है सर। है। और अगर ट्रेडमार्क अगर सिमिलर है, जी वो नाम तो अलग कर दिया ना उसने, जी सर। नाम तो अलग कर दिया ना, तो वो कर सकता है, फिर आप उसको रोक नहीं सकते, ओके ओके। है ना। अगर आपके एग्रीमेंट में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है तो फिर रोक नहीं सकते, बिकॉज ट्रेड के लिए रोकने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशंस होना जरूरी होता है एग्रीमेंट में। पार्टनरशिप डीड करने के पहले ऐसा इंस्ट्रक्शंस भी डाल सकते हैं ना सर? हाँ मतलब एकदम डाल जैसा आप। सकते हैं, पार्टनरशिप डेट जी में ही आप डाल दो ना, पार्टनरशिप डेट में ही डाल दो कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग ये पे रहेगी, और हमें से हम्म, कोई अगर बिजनेस करेगा तो 3 साल तक इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं कर सकता, और अगर बिजनेस करेगा तो इस एरिया में नहीं कर सकता, इस नाम से नहीं कर सकता। ऐसा अगर कंडीशंस डल गया तो फिर वो कर ही नहीं सकता, फिर आप केस फाइल कर सकते हो। बट अगर कोई स्टैंडर्ड पार्टनरशिप डीड है जिसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर तो आप उसको रोक नहीं सकते करने से। जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। I think that these are the questions that I have. ओके। So that's all from the students. Like one question has came from Daud Yasmin. For a startup at early age, how to handle logistic and delivery to direct customers? टू डायरेक्ट कस्टमर्स। I अब think he meant to say so direct to customers, D2C brands, those who have like Lenskart and all. Daud, बट could you elaborate a little? Your question seems incomplete. Hello, may I audible, sir? यस, Yes. Hello, या sir. For an या early या startup, ऑडिबल। yes, sir. Good evening, sir. For an गुड early इवनिंग। startup, it is difficult to handle both product size and that delivery part, sir. For the delivery हम्म part, if we consider the food processing or industries like हम्म the products which can spoil, in that case of time, if we need to supply the product directly to the customers, what will be the flow? What will be the logistic? What will be the transport part? How can it be managed, sir? We cannot handle both the production and the logistic part, sir, at early stage. it's true, but at the same time, considering that the kind of perissiness is there in the product, yeah, it has to be carefully handled. So uh, what I would suggest that try to optimize things by identifying the process involved, what should be the best process which you need to follow, right? And then hand over the thing to the some other person, delegate these things. Don't try to control each and everything, because that will make things difficult for you. That's why the startup funding comes into the picture, or any funding comes into the picture, because you need to have a funds available with you, जहां पर आप किसी को एम्प्लॉय कर कर उसको फंडिंग, उसको सैलरी देकर you can get this to manage. But what I would suggest, just try to identify what all processes are there which is involved in this the whole thing, और उसको ऑप्टिमाइज करें और उसको हैंड ओवर दें किसी को, एंड लेट हिम हैंडल इट, यू कंट्रोल इट फ्रॉम द रिपोर्ट परस्पेक्टिव। आप अगर Yes, खुद करने जाओगे, थिंग्स वुड बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, वो फिर क्या होगा, टिपिकली जैसे स्टार्टअप होता है वो नहीं चल पाएगा। आप किसी को दो और गेट सम फाइनेंसिंग डन और अपना फंड लगाओ, लेकिन उस चीज को जो उसकी सेंसिटिविटी है, ट्राई टू मेंटेन दैट। आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इस फील्ड में।
Okay. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. I think, sir, with that, just Sahil requested as he missed that answer that you have said because some network issue. So just repeating that question. Can we start business on our farmland of any product whatsoever and sell it without telling the government? He requested that if sir can answer, he Yes. listen. Yes, you can do that in case if you are producing something and selling the same things. In case if you are transforming that thing to any other product, then you need to get the approval from the government. I hope Sahil, you have got the answer. And sir, with that, I think we can conclude this session. And Okay. it was really exciting for the students as well as it has given them deep learning. Although at the introductory level, but at a level agriculture students are, for them, this much information would be more valuable so that they Yeah, can yeah. further build upon it. तो ये बहुत ही अच्छा session है उनके लिए sir. And as from the questions that has been asked by the students, it seems like they have benefited from this session clearly. So thank you so much, sir, for your valuable time. And students, this is the recording session and it will get uploaded on our YouTube channel. तो आप हमारे YouTube channel पे कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, so that anything that you have missed, you can go through it. Okay? तो ये है. And thank you, Manoj sir, for your Thank valuable you. time. Thank you And so much, sir. Thank you. Thank also you. take sessions at Acharpuram for the students of MBA Agribusiness Management plus PG IUCP. So, sir is our esteemed faculty as well. So, sir, it was really nice taking out time for this session, and I would request you in upcoming sessions if there is anything in a new topic that may be relevant. So, I'll reach out to you for Yeah, any yeah. such. Sure. Sure. Thank you. Thank you, both of you. Thanks. Thank you, sir. Thank you. Students, you can stay so we can answer you queries related to AIIP and other things. Hello, sir. Yeah, one after the other. Let me answer from the very beginning. So Kamal Chaudhary has asked when will we receive certificate and other such question. I'll take this up, but somebody said hello. So first, let's take that question. Hello, sir. I'm Prashant. Good evening, sir. Sir, I'm from Nashik district from Maharashtra. Sir, currently I'm pursuing MBA in Agribusiness Management, and I'm in fourth semester, where fourth semester of internship. So I want to know Okay. about how can I get work experience at least of 60 days in any company in my located area. Prashant, right now we have started one agri-industry internship program, but that is specifically for BSc Agriculture students, final year and recently pass out, MSc Agriculture, Life Sciences, and allied streams for that matter. We are not right now opening this internship for MBA students of anywhere, but it is open for all other streams that the eligibility criteria I have mentioned. If at a personal level you are asking me that where you can get an internship, so there are many internship opportunities you can look for over this LinkedIn, and there are many job opportunities as well as I am seeing to it. Okay, so there are many. For internship you won't face much of challenge. For job you have to struggle a little, but that is also can be done possibly. But the thing is you go for it, and there are many organizations existing as well as new organizations coming up. So Prashant, which stream you are doing your MBA? Sir, my specialization is agribusiness management. After BSc Honors Agriculture, I have taken admission in MBA in agribusiness management, and fourth semester is Which going on. college you are in? Sir, college name is Postgraduate Institute of Agribusiness Management, Chakur district, Latur, located in Maharashtra. Acha, this is in Latur. Yes, sir. ठीक है. So Prashant, you can explore these opportunities in LinkedIn first of all. So LinkedIn is a good place to find opportunities. You can also reach out to me over LinkedIn. So if there is anything that I can provide, and I'll definitely help you out for that. Okay. At the institution Yes. level, there are opportunities like agri-industry internship program. There is
Talk of Industry Expert. So these are for the final year graduate and postgraduate Master of Science students. Okay, BSc and MSc. So that is there. Yes, sir. I'm hoping. But still, literacy if you from- want, you can register for Corporate Setu. I have given my number and you can reach out to us and register in Corporate Setu. In Corporate Setu, we provide training for 2 to 3 months, and basis that training and your capability, we align you with the organization. There are certain paid programs as well. If you join any paid program, we assure you with the job in those programs. So anything that is being offered by Acharyapuram through Corporate Setu or through Acharyapuram Agribusiness Management School, we give you 100% placement guarantee in any of them, be it vocational training thing, be it MBA Agribusiness Management from PRTF plus PGI UCP. Okay, so आपको मैं सजेस्ट करूंगा एक बार आप कॉर्पोरेट सेतु की वेबसाइट विजिट करिए एंड यू कैन एक्सप्लोर अबाउट इट एज वेल. क्लियर है ये? Okay, sir. Okay. Corporate sector. It's okay. Yes. Okay. I'll share the link in the chat box as well. Bhaswati, could you please help me share the link in the chat box to everyone? Yes, I'll do it. Just give me a minute. Yeah, sure. Students, there are many questions like Kamal Chaudhary. Let me compile first all the question and then I'll answer. How will we receive the certificate? So Talk of Industry Expert के certificate का कमल बात कर रहे हैं. And the next question is we the student Akra Prabha is asking, we the student from Vidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, it's our third meeting including the previous two. So when will we get the certificate? As you have attended to and this is your third meeting, Akra Prabha, then you will certainly get the certificate within next 3 days. Okay, we are taking attendance, so we have to also verify and vet it. Those students, since this is a 4th session, so those students who have attended first 3 sessions regularly, they have received the certificate. Okay, we have awarded them certificate. You may have seen in the LinkedIn, some of the students have posted. And any other question? But the link of Corporate Setu is provided in the chat box. Okay, okay. Prashant and all other students, please go through the Corporate Setu website. You can inquire and you can register for agribusiness management. There is a program called OJS. तो आप ओजस में रजिस्टर कर सकते हो और उसके थ्रू आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों में मदद मिल जाएगी. Okay, sir. I do it. Thank you, sir. Thank you Yeah. for your guidance. Okay. Prashant, you would have registered for Talk of Industry Expert as well as you are attending this session, because later on you can also receive a certificate that would definitely be beneficial for you in finding out jobs as well. तो आपने register किया है? Sir, I am looking for internship in my same areas where I am No, residing. for Talk of Industry Expert जो session ये attend कर रहे हो, आपने इसके लिए register किया है? नहीं, sir. No. ठीक है, so you can visit in our website on Talk of Industry Expert का जो ये session है, because later what we do, we circulate the link Zoom in the group, so some of the students जिन्होंने register नहीं किया है वो भी join कर लेते हैं. Maybe you have joined through it. आप इसमें भी register करेंगे तो you will also get a certificate of participation in Talk of Industry Expert, जिसका आज ही 4th session है, मनित सर ने लिया है. ठीक है? Okay, sir. Okay, Sir. okay. Thank you, Yeah. sir. Sir, currently this side Saptarishi, sir, I have already 4 publications and I am pursuing, sir. I have previously done my MTech Bioinformatics and I'm doing MTech Biotechnology. So, sir, I have published 2 papers related to agriculture. But sir, I have several questions. I have asked to sir. The problem is, sir, in agriculture we have hydroponics in agriculture. So, sir, how can we bring a patent in how to establish a patent for a company? Can you please I help? think that question you should have asked to Manit sir, and since this is patent related question again, I have said to you now, you can visit our website. I'll also give you my email ID. So what you do, you Okay. write about all the queries you have in a detailed manner in an email ID, so that we can further convey it to Manit sir and we'll connect you, sir. Okay. Okay, clear है ये? Okay. And sir, another question. The internship which you have given, sir, MTech Biotechnology students can also apply, no? So these are MSc. For these MSc students, not MTech or MBA, we have not included in it. Okay. Okay.
But still, And if you MTech in you can agriculture. register. Listen to me. I am saying if you still want, you can register. Why I am telling you to register? Because what happens sometime? Because what happens sometime that students like there are many companies who look for different kind of profile. Generally, we have received a requirement of graduate BSc Agriculture, Masters BSc Agriculture, but still you can Okay. register if there is any kind of thing that comes. We will let you know. Okay. So Okay. that is, And I'll share the sir, link once in to you, so you can accordingly register. Yeah, go ahead. Go ahead. okay. Ask. Sir, another question, that is MTech in agricultural technology can also apply, no? That is why I am saying you apply. If you we find suitable opportunity for you, we don't have any problem to share with you. Okay. 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 I am right Okay. now Okay. sharing about this agri-industry internship program, as many students have asked. And in the first week of itself, we will announce the first set of students who will be doing the internship or starting their internship. Got it? So we shall be doing it very early in the first week of April only. First set of students who will be given the internship. So they will be announced. So you register because the last date is 25th of March. Got it? किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है? हेलो, यदि किसी और स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी और एल्स वी विल कंक्लूड दिस मीटिंग. ओके, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी. Sir, another question from my side. Sir, this internship will be for how many months? 3 to 4 weeks. Okay. Okay, 3 to 4 weeks. And sir, certificate will be given. Given by the organization which will be providing you the internship. Like suppose any company you take the name, Yes. be it UPL हो, Bayer हो, Adama हो, Tata Chemicals हो, जो भी company है, ठीक है? These are the suggestive names I have told. Whatever the companies those will hire would be the one you will let you know once the hiring process is completed. Okay. Okay. These are the companies I have told, as they are working in the agribusiness domain. Whether they will be there or not, that time will tell when student will receive the this final announcement of the first set of shortlisted selected candidate for AIIP Agri Industry Internship Program by Acharpuram. That is there. 3 से 4 वीक का इंटर्नशिप होगा. लोकेशन कंपनी डिसाइड करेगी. पेड इंटर्नशिप है तो स्टाइपेंड होगा इसमें, और बच्चों को Okay. सर्टिफिकेट मिलेगा बाय द कंपनी बट थ्रू आचारपुरम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल, क्योंकि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं तो हमारे थ्रू सारा मैनेज होगा. ये क्लियर है? ये Okay. Okay, sir. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स इफ यू हैव? Sir, I have registered. So after how many days we will get? Saptarshi, you can ask all these questions by calling our teammate. Okay, so the contact Okay. number is also there if you have registered, so that would be better. Thank you. Other students, if anybody has any question or any doubt, you can let me know. Those students who have completed their 3 sessions, they will be, after checking the attendance by our team, and they will be given the certificate. So all of you, those who have attended so far 3 sessions, will be given certificate. Those who have attended 2 sessions, they can attend the next sessions whenever it happens. Generally, we conduct in Saturday or Sunday. So you can attend that session, and after that, you will be provided the certificate. So you don't have to worry about it. I hope this is clear. Okay. With that, I'll conclude this session, and thank you, Baswati, for managing this session and coordinating with the students. And students, इस तरीके के सेशन करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाना है. We are giving certificates to those students who are sincere and participating regularly. We are not just giving it to anybody, but the thing is, you need to focus upon the learnings, whatever is being explained and taught by the speakers in the sessions, and implement it. Because if you are coming here attending and not implementing it further, you will not get benefited. तो आपको उसको implement करना है, and you will learn a lot. Those students जिनको internship के लिए देख रहे हैं, वो एग्री इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हैं. मैंने लिंक अभी चैट बॉक्स पे भी शेयर किया है, एंड दैट यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एज वेल. इसके अलावा किसी को डाउट हो, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर्स भी शेयर किए हैं. आई विल शेयर द अगेन. इफ किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है,
आप हमारे रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं हमारी टीम को, एंड यू विल बी गिवन ऑल योर क्यूरीज आंसर। जैसे सप्तर्षि आपके बहुत सारे डाउट हैं, आई अप्रिशिएट वट एवर क्वेश्चंस यू हैव आस्क्ड, दे वर ऑल जेन्युइन, but due to limitedness of time right now we may not be able to answer, but you can reach out to us in our given contact number as well as email us all your details which we can further communicate to Manit sir. Clear है ये सभी को? Yes, sir. Okay, thank you Sahil, and Yes, thank you sir. all dear students. All the very best, and keep attending these sessions. And I would just urge the students to please encourage all your classmates also to participate and register for this session, because this will definitely gonna benefit you. You don't know when things click. Okay, so you are attending session, something valuable comes in your mind, and this is good. So it's a Eureka moment for you. Okay, so like that. With that, thank you all dear students. My best wishes with you all. Thank you.